Hello friends, so let's discuss the new topic that is nothing but our kidney biopsy or renal biopsy. So you can see the patient is in prone position. Okay, the doctor or the radiologist is nothing, or you can say nephrologist, radiologist, nephrologist, whoever can perform this procedure. So ultimately the nephrologist is you can say aspirating the lignocaine to localize the area. So what is needed for the you can say renal biopsy procedure? So vital should be okay, triple H should be done, NBH patient होना, patient should be in NBM stage, blood thinner stop होना चाहिए patient का, and you will be awake. This is a day care procedure. रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में करेंगे. यू कैन सी लिग्नोकेन पेशेंट को दे रहे हैं हम. ओके, वी आर अनेस्थेटाइज द एरिया वेयर वी वांट टू परफॉर्म द किडनी बायोप्सी. तो लेफ्ट साइड प्रीफर होता है, लेफ्ट जो किडनी होती है, लेफ्ट साइड किडनी जो होती है वो प्रीफर्ड साइड होती है अपने रीनल बायोप्सी के लिए. ओके, तो लोकल विल बी यूज्ड गाइड, यूएसजी गाइडेड रीनल बायोप्सी करेंगे. ये देखिए रीनल बायोप्सी नीडल है, एंड अल्टीमेटली वी विल टेक आउट द 2 to 3 times रीनल बायोप्सी सैंपल्स एंड विल सेंड टू द histopathology, you can say further studies. Okay, so doctor remove the tissue for the 2 to 3 times, around 15 to 20 minutes का procedure है. You can see, you will notice we have a two area, renal cortex and renal medulla. So from the renal cortex area we will take out the sample. Okay, so if we're talking about the renal biopsy in some important aspects regarding this, so if the acute pathology of kidney started, so we are performing the imaging studies, we will do the blood test. So common condition like you can say chronic kidney diseases, kidney cancers, kidney cell carcinoma, or kidney failure, end stage renal failure. So these can be ruled out with this renal biopsy only, because the pyelonephritis, you can say kidney stone, polycystic kidney diseases, or you can say urethral structure, या फिर you can say prostatomegaly, या फिर UTI, you can these all the kidney diseases you can rule out by doing the multiple imaging studies, by doing the multiple blood tests and all. Okay, but suppose any acute pathology है, क्रियाट बढ़ रहा है पेशेंट का, यूरिन आउटपुट कम हो गया पेशेंट का विदाउट एनी रीजन. ओके, you did all the imaging studies, you already done the blood test, but you can't rule out what the main pathology is occurring inside the kidney. Okay, तो ये the next step is the kidney biopsy. तो kidney biopsy को blood sample हम लेते हैं, we are tissue withdrawn from the kidney and we will send for the you can say histopath. वहाँ पे अंडर माइक्रोस्कोप में causes of kidney disease को वहाँ पे देखेंगे, amount of scarring in kidney देखेंगे, and ultimately we can rule out the chronic kidney diseases, or it is a kidney cell carcinoma or the kidney failure है या नहीं. Okay, so kidney you all know very well, which is ultimately helps in multiple फंक्शंस उसका रोल पे होता है. आरबीसी प्रोड्यूस करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है. तो साइड बाय साइड यू कैन वॉच द वीडियो ऑल्सो. तो किडनी बायोप्सी नीडल से 2 to 3 टाइम्स हम सैंपल विड्रॉ करेंगे, सैंपल लेंगे. रिनल मेडुला में नहीं लगना चाहिए, बिकॉज रिनल मेडुला में अपने लूप ऑफ हेनलीस होते हैं, ब्लड वेसल्स पूरे लगे हुए रहते हैं, उसमें ब्लीडिंग होने के चांसेस है. एंड दैट्स वाई पेशेंट को हम सांस रोकने के लिए बोलते हैं वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग दिस यू कैन से स्टेप्स, और वेन एवर वी आर परफॉर्मिंग दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स. ओके, सांस रोक के रखने के लिए बोलते हैं, सो दैट जो रीनल कॉर्टेक्स है एक पर्टिकुलर यू कैन से पोजीशन में आ जाएगा, एंड अल्टीमेटली वी कैन विड्रॉ द सैंपल. तो अगेन एक नेक्स्ट पेशेंट है हमारे पास, फीमेल, जिसका एक्यूट पैथोलॉजी लेके पेशेंट आई थी. यूरिन आउटपुट कम था पेशेंट का, किडनी क्रियाट बढ़ा हुआ था, एंड यू कैन से जो अपने मैक्रो प्रोटीन्स रहते हैं, प्रोटीन यूरिया, ग्लूकोज यूरिया, ओके, जितने भी मैक्रो मॉलिक्यूल्स है विच अल्टीमेटली किडनी कैन फिल्टर, बट दिस काइंड ऑफ पेशेंट में जो होता है प्रोटीन लॉस होता है, ग्लूकोज लॉस होता है. ये प्रोटीन लॉस, ग्लूकोज लॉस यूजुअली नॉर्मल पेशेंट में जो रहते हैं वो नहीं देखने को मिलता है. ओके, यू ऑल नो वेरी वेल, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके टेक्निक होती है हमारे बॉडी में जो कि किडनी रोल प्ले करता है. एंड किडनी का जो वो इंपॉर्टेंट पार्ट ग्लोमेरुलस, वो कहाँ पे होता है, वो काइंड ऑफ अपने ये रीनल कॉर्टेक्स में होता है. तो रीनल कॉर्टेक्स में कितना फाइब्रोसिस हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ फाइब्रोसिस हुआ है, कितना अमाउंट ऑफ स्कारिंग हुआ है, ओके, उसके थ्रू हम क्या करते हैं अंडर माइक्रोस्कोप में देख के, एंड वी कैन रूल आउट द किडनी पैथोलॉजी. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग द किडनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस. आरबीसी प्रोड्यूस करता है, आरबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, एसिड बेस बैलेंस करता है, विटामिन डी के यू कैन से प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है. ओके, कैल्शियम फॉस्फेट रेगुलेशन करता है. देन यू कैन से एक अनकंट्रोल बीपी जब आती है पेशेंट को, तो हम रीनल डॉपलर भी करते हैं. तो बीपी रेगुलेट करने में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ना हो, इसके लिए भी किडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ओके, एंड मल्टीपल इसके बहुत सारे यूजेस वगैरह हैं. एंड आफ्टर दिस प्रोसीजर 4 आवर्स का एनबीएम रखते हैं पेशेंट्स को, एंड अल्टीमेटली आफ्टर द एनबीएम वी आर स्टार्टिंग काइंड ऑफ सम उसको सिप ऑफ वाटर देते हैं. इफ द पेशेंट इज टॉलरेटिंग वेल एंड गुड, पेशेंट को बैक हम घर पे भी भेज सकते हैं. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट फॉर अवर दिस किडनी पैथोलॉजी, द इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज नथिंग बट अवर किडनी बायोप्सी. ओके.